Hello everyone, I'm Vedant Joshi teaching in BAPS Gurukul Gondal. Welcomes you all to my channel. See, as you can see in your screen, we were discussing about chapter number 1, Heritage of India. Until now, we have completed two different parts, part 1 and part 2. If you haven't watched that, then you can go and watch. Link is given in the description box. Okay, so first of all, we will revise just a quick revision, and then after we will move on with the today's topic. Today we are going to conclude this chapter. Okay, only few topics are remaining. So let us first of all revise. Again, we have done the revision, but just a quick look. Okay, India is a land of the ancient culture. Ancient Indian scripture विष्णु पुराण states, विष्णु पुराण में लिखा है, एक श्लोक लिखा हुआ है, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमाद्रियस्य देव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारत यत्र संतति ही. I have already explained the meaning of this. Okay, जिसके नॉर्थ में हिमालय, साउथ में इंडियन ओशन है, उन दोनों के बीच में जो लैंड है उसको इंडिया कहा जाता है. एंड द पीपल हु आर रिसाइडिंग देयर आर नोन एज द Indians. They are called the Indians. Okay, then after, which different words are used in the beginning of the ceremony? Bharat Varsh, Bharat Khand, Jambudvip, etc. words are used in the beginning of any religious ceremony. Then after, in the in the southern part of India, Indian Ocean is there. In the western part of India, Arabian Sea is there. And in the eastern part of India, Bay of Bengal is there. Okay, then after, we have learned the different people came from different countries and they have settled in India, and because of the mutual exchange of their culture and our culture, okay, Indian culture have progressed continuously. Then after, India's location and area, location wise, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इंडिया कहाँ पर है, किस लैटिट्यूड से लेकर किस लॉन्जिट्यूड तक, शायद आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में डालना. ओके, फ्रॉम विच लॉन्जिट्यूड टू विच लैटिट्यूड इंडिया extends. Then after, area wise, India ranks 7th in the world. Population wise, India rank 2nd in the world. Then after, top 10 countries according to the population and top 10 countries according to the areas. Here in the left side, the top 10 countries according to the area is given, and on the right side, top 10 countries according to the population. Then after, reach and varied heritage, उसमें same चीज लिखी हुई है. Satchit and Anand are realized from the Indian culture. Satchit and Anand. Then after, Indian culture have continuously progressed because of the mutual exchange of the different tribes which came and settled in India, that we have already discussed. Then right from the beginning of the Indus Valley civilization, Indus Valley civilization means near about 5,000 years ago, 3,300 BCE से लेकर 1300 BCE तक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो तब से लेकर अब तक कितने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इंडिया के कल्चर को आगे बढ़ाने में, इंडिया के कल्चर को डेवलप करने में. Be it artist, artisan, saint, sages, scientists, historians, etc. All these persons have contributed, making our culture rich and varied. Then after, definition culture की, culture is a way of life, is a sum total of habit, values, customs, okay, and lifestyle of the humans. तो कल्चर कहाँ जाता है, सब चीजें मिला दो, हमारे जो हैबिट्स है, हमारी कस्टम्स, हमारे वैल्यूज, ट्रेडिशंस, all these things combines make a culture. Then cultural heritage of India. So first of all, we have learned the meaning of the heritage. Okay, heritage का मतलब क्या होता है? It's a valuable gift which we have received from our forefathers. Our heritage is divided into two parts, natural heritage and cultural heritage. तो natural heritage का मतलब क्या होता है और cultural heritage, से पहले उन दोनों में क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं. Natural heritage include landscape, river, vegetation, wildlife. Cultural heritage includes music, painting, artistic work, architecture, sculpture, literature, science and technology, and many other different things are included in the cultural heritage. Natural heritage of India, it's a result of close relationship between the nature, environment and human life. Definition है, underline कर लेना. Okay, if you haven't. Then which different things are included in our natural heritage? All those things which we have received from the nature. Okay, plants, flowers, insect, landscape, wide range of minerals, vegetations, all these things are included in our natural heritage. और उसके एग्जाम्पल्स है कि हम कितना कनेक्टेड है अपने नेचर से, कि अगर हमें एग्जाम्पल्स चाहिए तो ये मिल सकते हैं फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जटका टेल्स ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन. So all these things we have studied.
देन आफ्टर नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीज आती है, चार चीज मेनली इंक्लूडेड है, उसमें से फर्स्ट वन है लैंडस्केप। लैंडस्केप कैसे फॉर्म होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड। फॉर एग्जांपल हिमालय इज अ लैंडस्केप, इट हैज एंडोर्ड, मतलब हिमालय से कितनी अच्छी चीजें हमें मिलती है, वेजिटेशन मिलता है, मिनरल्स मिले हैं, ब्रीमिंग रिवर्स, देन the pilgrimage places Amarnath, Badrinath, Kedarnath, etc. All these things are available from the Himalaya. Then rivers, okay, rivers में मैंने बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है ये दो नाम, Indus and Ravi, on the banks of which the Indian culture have flourished. Then after, which are the most prominent rivers of India? Ganga, Yamuna, Saraswati. Indus means Sindhu. Narmada, Godavari, Krishna, Kaveri. These all are some of the prominent rivers in India. Then rivers के uses आपको याद रखना है. Why rivers are considered as लोक माता, उसमें ये आंसर आ सकता है. Domestic use, irrigation, electricity, okay. देन ह्यूमन लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए, इंडस्ट्री में क्ले यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ऑल दिस थिंग्स, ओके, इन ऑल दिस थिंग्स रिवर वाटर इज यूज। देन आफ्टर एट डॉन एंड डस्क, उसमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ये एक फिजिकल यूज नहीं है, ओके, ये सिर्फ हमें मेंटल पीस देता है। ओके, सो देन रिवर्स आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द artist also. So here we conclude the part of the river, and then after vegetation. Vegetation में सिर्फ आपको याद रखना है नेम ऑफ सर्टेन फ्लावर्स एंड नेम ऑफ द सर्टेन पल्सेस। पल्सेस के ज्यादा नाम तो है नहीं यहाँ पर, सिर्फ फ्लावर्स है, एंड द आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स, तो उनके आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं यहाँ पर, दैट इज अर्डे, आंवला, बेहंदा, एलोवेरा, अर्डोसी, नीम, एक्सेट्रा। देन आफ्टर फ्लावर्स, तो मोगरा, then after sunflower, jasmine, okay, rose, these all things you can write, lotus. तो वेजिटेशन में ये सभी चीजें इंक्लूडेड है। वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज a natural lover and animal lover since ancient time. Okay, many different animals are found in India, उसके आप नाम लिख सकते हो, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, monk, lizard, porcupine, etc. are the different animals which are found in India, especially this one. Asian lions in the world are found only in the Gir forest of the Gujarat. Then after, जो इंडिया है वहां के लोग एनिमल लवर है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो, तो मैंने बोला था बाय टू डिफरेंट थिंग्स, here we include the animals as the vehicles of the god and goddess, and then after we have given the animals in the we have given the animals the place in our national currency also. Then cultural heritage of India. See, cultural heritage means man-made heritage. Okay, many different tribes came and settled in India, and because of the mutual exchange of the culture, our culture became very rich and varied. And our culture is approximately 5,000 years old. वो कैसे पता चला हमें? इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसमें से काफी ऐसी चीजें मिली है, उसके रिमेन्स मिले हैं, उसके ऊपर से हमें पता चला है। ओके, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खुद 5,000 साल पहले थी। तो एज अ रिजल्ट वी केम टू नो दैट अवर कल्चर, जो हमारे आर्ट और आर्किटेक्चर है, जो स्कल्पचर है हमारे कल्चर में, हमारे कल्चरल हेरिटेज में, वो सभी 5,000 ईयर्स पुराने हैं। ओके, कौन कौन सी चीजें मिली थी, तो इन्वर्टेड inverted lion on the lotus of the Mauryan era, and statue of Gautam Buddha, Kalkan statues of Jain Tirthankars, caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, ये सभी चीजें देखकर हमें बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। तो ये स्टेच्यूज ऑफ बियर्डेड मैन है। देन आफ्टर इन्वर्टेड लोटस के ऊपर जो ये फुल फुल्लोक आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, लायन की भी पिक्चर है, फिगर ऑफ 4 लायंस, कलर ऑफ सारनाथ में, अशोका में, वहां से मिला था, नेशनल एम्बलम है हमारा। फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में और कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, तो स्टूपास है, चेटियास है, विहारास है, टेम्पल, मॉस्क, फ्रीडम फाइटर्स, ओके, फ्रीडम मूवमेंट की जो प्लेसेस थी हमारी, वो सभी चीजें भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। बिसाइड दिस लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, ऑल दिस थिंग्स आर डेड। फिर कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में पढ़ा था मैंने, उसमें बोला था आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंस एंड religious importance, and tourist oriented places, tourism oriented places, and you just have to mug up all these names. Okay, tourism oriented places also, polo forest, kite festival, Tanariri festival, Ranotsav, Vadnagar, ये सभी caves, okay, बुद्धिस्ट एंड जैन की, और ये सभी टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस।
ये सभी आपको याद रखनी है। देन फेयर्स ऑफ गुजरात, just have to mug up the entire table. Tithi and time is not necessary, otherwise the name of the fair and the place. Okay, district as well as the village, both you have to remember. Then India and land and people, उसमें हमने पढ़ा था कि कितनी सारी ट्राइब्स इंडिया में आई थी। ओके, और ऐसा माना जाता है कि द्राविडियन सबसे पुरानी है, लेकिन कई स्टडीज ने ऐसा भी प्रूव किया है कि द्राविडियन से पहले भी कई सारी ट्राइब्स इंडिया में आकर सेटल हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था नेग्रेटोइड के बारे में। इन दिस सी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। कहाँ से आए थे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कैसे कंट्रीब्यूट किया है हमारे इंडियन कल्चर में उन लोगों ने। तो कहाँ से आए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रीब्यूशन। निषाद में भी सेम थी, कहाँ से आए, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया मतलब अभी देखो तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ओके, देन लाओस, कंबोडिया, फिलीपाइंस, ये सभी साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक स्किन, ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। और कंट्रीब्यूशन मतलब क्ले यूटेंसिल्स बनाना आता था उनको, ये सभी स्किल्स उनके पास थी। ओके, और ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो अभी जो ट्राइब है आसाम में, कोल और मुंडा और खासी ट्राइब, ये ऑस्ट्रालोइड से सिमिलैरिटीज उनकी मैच करती है। द्राविडियंस के बारे में पढ़ा था, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बोला था। द्राविडियंस को ऐसा कहा जाता है कि दे आर दी ओरिजिनेटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो जो है मोस्ट एडवांस विलेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो द्राविडियंस ने ही बनाया था, ऐसा कहा जाता है। द्राविडियंस गेव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज ए गॉडेस एंड फादर एज ए गॉड। ओके, देन आफ्टर द्राविडियंस ने हमें क्या सिखाया है, तो कि धूप दीप सॉरी धूप दीप आरती, ओके, इंसेंस स्टिक्स मतलब गुजराती में वो कहा जाता है अगरबत्ती। ओके, तो धूप दीप एंड आरती से हमें वर्शिप करना सिखाया है। देन आफ्टर द्राविडियंस एज ए मैट्रियकल फैमिली सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर ले। मीन्स द सिस्टम इन विच फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली। फिर उनके पास स्किल कौन कौन सी थी, वॉट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स वेर हैविंग, ओके, among the Dravidian, prevalent among the Dravidian। ओके, तो इतने तक हमने पढ़ा था। अदर ट्राइब से हमें पढ़ना है। उससे पहले अगर आपको याद रखना हो, ओके, टोटल 6 different tribes came and settled in India: Negratoid, Australoid, Dravidians, other tribes, Aryans। अदर ट्राइब्स में 3-4 और नाम है, ओके, मोंगोलॉइड्स है, एल्पाइन है, डिनारिक है, एर्मिनोइड्स है। इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, देन मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, ओके, ये याद कर लेना, लिख लेना कहीं। एम एडम एंड डीएनए। एडम एंड डीएनए आर गुड फ्रेंड्स। ओके, ठीक, ये जो है मैडम, ये वर्ड, इसमें आपकी सारी अदर ट्राइब्स आ जाएगी। अदर ट्राइब्स, ठीक, मोंगोलॉइड्स, एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मिडोइड। ये तो सिर्फ ऐसे ही, ओके, ये लेटर का कुछ यूज नहीं है, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर वर्ड बनाने के लिए यूज किया। तो मोंगोलॉइड, एल्पाइन, डिनारिक एंड एर्मिनोइड। सो ये मैडम वर्ड में आपका पूरा अदर ट्राइब्स आ जाएगा। तो मैडम एंड डीएनए आर गुड फ्रेंड्स। सो डीएनए में द्राविडियंस, ग्रेटोइड एंड ऑस्ट्रालोइड्स एंड आर्यंस। एंड वेयर दो है, ओके, ऑस्ट्रालोइड्स एंड आर्यन। सो मैडम एंड डीएनए आर गुड फ्रेंड्स, ये आप याद कर लेना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर ट्राइब्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैडम। ओके, अभी आए तो नहीं है ना, आए वही अच्छा है। ओके, सो Mongoloids, so where from where they have came, North China via Tibet and settled down in the North Assam, Sikkim, Bhutan and West Bengal. They gradually Indianized themselves, means इंडियंस के जैसे वो लोग रहने लगे, हमारा कल्चर उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, येलो कम्प्लेक्शन, फ्लैट फेस, चब्बी चिक्स, आलमंड शेप आइज, चाइना के लोगों की होती है आलमंड शेप आइज, आपको पता है। okay. Yellow complexion means little yellowish skin, and Mongoloids were of yellow complexion and they were known as the Kirat। तो किराट कहा जाता था, ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर लेना। तो किराट इसलिए कहा जाता था बिकॉज उनकी जो स्किन थी वो येलोइश थी।
उसके बाद अदर ट्राइब्स है अल्पाइन डिनारिक एर्मिनोइड, दिस वेर द स्मॉल ट्राइब्स व्हिच केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। अभी सेंट्रल एशिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, सॉरी कंट्रीज, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओके, फिर उज्बेकिस्तान, ये सभी जो कंट्रीज है दे आर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल एशिया। तो वहां से वो लोग आए थे और इनके जो जीन्स है अदर ट्राइब्स, ये अल्पाइन डिनारिक एर्मिनोइड्स के, ये अभी भी गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, ये सभी में पाए जाते हैं। ओके, so let's move on with the one of the most important again topic, that is the Aryans. Aryans and Dravidians are very much important, तो ये आपको thoroughly याद कर लेने हैं। ओके, तो आर्यंस वेर द क्रिएटर्स ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो आर्यंस को ऐसा कहा जाता है कि नियर अबाउट 1500 बीसी, 1500 बीसी में आर्यंस इंडिया में आए थे। 1500 बीसी मतलब आज से 3500 साल पहले, 3005 years, 3500 years ago। ओके, तो एंड दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वो भी सेंट्रल एशिया से ही आए थे। So Aryans were the creators of the Aryan civilization in India. Hindus were called Aryans in the ancient time, and they were in the area where they were densely populated is known as the Aryavrata. ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में। इंडिया को आर्यव्रता भी कहा जाता है बिकॉज आर्यंस यहाँ पर रहते थे। ओके, और काफी वास्ट लैंड उन्होंने कवर करके रखा था, बहुत ही बड़ा, तो उसको आर्यव्रता भी कहा जाता है जहां पर वो लोग रहते थे। As 7 rivers were flowing over there, the regions were named as the Sapta Sindhu. सप्त सिंधु भी कहा जाता है उस एरिया को, किस एरिया को, आर्यप्रता को सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ओके, इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये आपको ज्यादा याद रखना है कि पहले उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में कैप्चर किया था। ये एक प्रकार से इन्वेशन भी बोल सकते हैं आप, बिकॉज काफी मास प्रोपोर्शन में, काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो द्राविडियंस हैड टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। हमने द्राविडियंस के पैराग्राफ में पढ़ा था, उन्होंने बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्यंस दे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। तो उसका रीजन ये था, आर्यंस ने आकर नॉर्थ और वेस्ट में रहने लगे और उनका डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, एंड एज अ रिजल्ट द्राविडियंस हैज टू मूव टू द The area of Aryavarta was extended up to Mithila near Bihar in the eastern, and in south it is spread up to Vidyanchal during the post-Vedic period. ये भी आपको समझना है, पहले ये थोड़ा आर्यंस जो 100 BC में आए थे। ओके, तो आर्यव्रता जो एरिया है वो कौन सा एरिया जहां पर आर्यंस रहते हैं, एंड दिस एरिया वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम बिहार, बिहार तक, ईस्ट में बिहार तक फैला हुआ था। ओके, वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ था, नॉर्थ में अप टू दी प्रेजेंट आप बोल सकते हो जम्मू एंड कश्मीर, एंड साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि आर्यव्रता जो एरिया जहां पर आर्यंस रहते थे वो कितना बड़ा था। तो ईस्ट में बिहार तक, वेस्ट में गुजरात तक, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर तक, एंड साउथ में विंध्याचल तक। They were the most advanced people than any other contemporary tribes. Contemporary means at the same time, वहां पर दूसरी और ट्राइब्स भी थी, जैसे द्राविडियंस थे, ओके, अल्पाइन डिनारिक एर्मिनोइड्स थे, लेकिन कंपेयर्ड टू दैट आर्यंस वर द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, ओके, मोस्ट एडवांस पीपल आर्यंस को कहा जाता है। दिस वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेरियस नेम्स। ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी स्टडी करके रखी है इंट्रोडक्शन में कि आर्यव्रता को दूसरे किस नामों से जाना जाता है जहां पर आर्यंस रहते थे। तो भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा एक्सेट्रा, ऑल दिस, ये सिर्फ डिफरेंट नेम्स है, ओके, इंडिया के जहां पर आर्यंस रहते थे, वो भी आप बोल सकते हो। तो आर्यंस की कोई और चीजें है जो हम देख लेते हैं। Aryans were natural lover. They loved and worshipped the trees, the rivers, the mountain, the sun, the wind and the rain. Aryans were natural lover. उन्होंने हमें सिखाया है ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन, सन को वर्शिप करना। They had composed hymns for praying the various natural elements. Okay, hymns means रिचास, means भजन बोल सकते हो आप। दूसरे नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स सन को प्रे करने के लिए, रिवर्स को प्रे करने के लिए उन्होंने भजन्स बनाए, हाइम्स बनाई हुई है, मंत्रस बनाए हुए हैं। In due course of time, some religious ceremonies
like recitation of Vedas, performing yajnas and other activities became prevalent in India. तो आर्यंस के आते ही ये सभी चीजें स्टार्ट हो गई यहाँ पर। वेदास, उनकी रिसाइटेशन मीन्स बोलना, ओके, रिपीट करना। देन परफॉर्मिंग यज्ञास, यज्ञ जो बोलते हैं यज्ञास, यहाँ पर यज्ञ, ओके। तो ये सभी चीजें इंडिया में स्टार्ट हो गई आफ्टर द अराइवल ऑफ द आर्य। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific lifestyle of living, and harmonious culture was found which gave India a glorious and prosperous heritage. These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity to the intercaste marriages. Okay, ये समझना है आपको। ये सभी बाहर की जो ट्राइब्स थी वो इंडिया में आई और इंडिया में इस तरह से सेटल हो गई कि वो लोग अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को उन्होंने खो दिया। वो लोग इंडियंस बन गए, यहाँ का कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स। तो एज अ रिजल्ट their original identity was lost and they Indianized themselves. The outsiders and local people were greatly influenced by the language, script, names, and religious beliefs, played a vital role. Vital means a very important role in Indianizing these foreigners. Since ancient time, a composite culture has been created in India. Composite means a mixed culture, a varied culture has been created in India. और उसके पीछे का रीजन है हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो रिलीजियस बिलीफ्स है, हमारा जो कल्चर है, उससे बाहर की जो ट्राइब्स थी वो इन्फ्लुएंस हो गई और यहाँ पर आकर वो लोग सेटल हो गए। एंड एज अ रिजल्ट आवर कल्चर गॉट nourished. So here with that we are concluding the cultural heritage and the different tribes which came into the India and how our culture got nourished, how our culture got developed. ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अभी देखो इतना अच्छा कल्चर हमें मिला है, इतनी अच्छा कल्चरल हेरिटेज हमारे पास है, तो इट इज अवर ड्यूटी दैट वी शुड प्रोटेक्ट इट। ये हमारी ड्यूटी है कि उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है इन द आर्टिकल 51A, आपको पता ही होगा। ओके, इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन द आर्टिकल 51A। ऐसा मत लिख देना, मेंशन इन द फर्स्ट पेज ऑफ आवर टेक्स्ट बुक सर। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे फर्स्ट पेज पर है टेक्स्ट बुक। इट इज मेंशन इन द आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स भी है। ओके, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो 6th, 7th और 9th पॉइंट है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। में से जो 6, 7 और 9th पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें हमारे जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। नॉट ओनली द कल्चरल हेरिटेज बट द नेचुरल हेरिटेज ऑल्सो। वी शुड प्रोटेक्ट अवर कल्चरल एज वेल एज द नेचुरल हेरिटेज। इट इज गिवन इन द 6th, 7th एंड 9th पॉइंट, ओके, इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देख लेते हैं क्या तीन चीजें, ये कौन कौन से 3 पॉइंट है 6, 7th और 9th में। ये 3 पॉइंट है 1, 2 एंड 3। So to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it means हमें हमारे कल्चर जो है उसका इम्पोर्टेंस समझना है और उसको प्रिजर्व करके रखना है। Maintain the forest, tanks, rivers, ponds and wild animals and bring along with maintaining the natural environment, and to show the compassion for the all living creatures। इसका मतलब कि सिर्फ कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना नहीं है, वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में ये सभी चीजें इंक्लूड होती है, फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, तो वी शुड प्रोटेक्ट देम ऑल्सो। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग अप वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन इन द फंडामेंटल। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपना चैप्टर। Thus, the nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity. Sanctity का मतलब भी यही होता है, ओके, पवित्रता। And the beauty of these places, considering it to be our moral duty. तो नेचर ने हमें इतनी सारी चीजें दी है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिए है, रिवर्स दी है, माउंटेन्स, ओके, पॉन्ड्स, प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन,
तो इट इज अवर ड्यूटी दैट वी शुड मेंटेन इट। सिर्फ नेचुरल हेरिटेज नहीं, कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करना है। कल्चरल हेरिटेज का मतलब मैंने आपको बताया, जो मैन मेड हेरिटेज है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है हमारे, पब्लिक प्लेसेस है हमारी, तो ऑल दोस थिंग्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड। इतना रिच हेरिटेज है हमारा, इतना बढ़िया हेरिटेज है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको प्रिजर्व करके रखें। द इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही लंबे समय लगा है उसको बनाने में, ओके, उसको डेवलप करने में। नेचर हैज generously donated abundant prosperity to India. Abundant prosperity means काफी ज्यादा prosperity, ओके, समृद्धि दी है इंडिया को, और उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू द पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर। का मतलब सिंपल है, पेक्युलर मीन्स यूनिक। हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यूनिक है, एंड एज अ रिजल्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिली है डेवलप होने की। तो हमें डेवलप करना है इंडिया को, और ऐसे डेवलप करना है कि ये सभी चीजें जो है वो प्रिजर्व हो सके। In this way, the Indian heritage is a result of development of people of India in a social, economical, political, and cultural fields over a centuries. अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इंडिया का जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ है, तो इंडिया के लोगों की वजह से डेवलप हुआ है। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने सोशल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, कल्चरल फील्ड में, सभी फील्ड्स में अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, and because of that reason Indian culture is continuously progress. Our moral duty so it. So here with that we are concluding the first chapter of our history portion, that is the heritage of India. Okay, think you all must have enjoyed this history portion। ये और चैप्टर है, ये सारे कल्चरल हेरिटेज को डिस्क्राइब करते हुए, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें अगर कोई मुझे इम्प्रूव करनी है तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फाइन, साइनिंग ऑफ।